So let me start with the recording and share my screen. Yeah. Good evening, Anurag. Is my screen visible to you guys? Yes. Is my screen visible to you guys? Yeah. Great. Thank you so much. Fine. So before going ahead, let us discuss what we have covered in our last lecture. Right? That was on Saturday. Okay. So last lecture में हमने कौन सा CSS का property देखा था? Can we just revise it once? Yes. Which all property we have seen in our last lecture? That was on Saturday. कौन सा देखा था हमने प्रॉपर्टीज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन जो पेंडिंग टेक्स्ट को स्टाइलिंग करने के लिए प्रॉपर्टी वी यूज इट, राइट? एग्जैक्टली. Sorry. Then later what we have seen? Then we have seen some of the property, or else we can say filters property on images, right? Okay. How can we style the images and all stuff? Exactly, right? Okay, let's you guys answer the first. Okay. I guess some might be writing. I don't know why the this count are so less for today. What's the reason out there? Monday इसके लिए क्या? Even I have one important stuff to discuss at end of this lecture. Okay, we'll be discussing it at the end of the lecture. Fine, no worries. Till then और क्या क्या देखा था हमने? हाँ, text decoration, spacing, justify. Okay, exactly. Text property, then cursors देखे थे, image styling property, gradients देखे थे, exactly. Overflow property देखा था, right? Then we have seen how can we style the list as well. Okay, by using the CSS and box shadow and text shadow. Exactly. Yes. Okay. Fine. So we'll be covering the most important stuff. Okay. Right. That is the box model and the flex box in our today's class. Fine. So let's move ahead now. Okay. So before going ahead, okay, let us see few example. Okay. What does this box model basically is? Okay. So I just want कि हम कौन सा भी एक वेबसाइट ये कर सकते हैं, that is where we can go on the Hotstar for now. Okay, and let us analyze this website how it's been made. Fine. Okay, so let us see one by one. Is my screen visible to you guys? Yes. Amazing. Fine. Okay, chalo, let's analyze it one by one. Okay, so let me take this first. सो बिफोर गोइंग अहेड, देखो हम कौन सा वेबसाइट बनाते हैं ना, राइट? सो वहां पर ईच एंड एवरीथिंग इज बीन मेड इन वन बॉक्सेस एज वेल. ओके, वो बॉक्स के साइज में होता है बट इट हैज बीन प्लेस्ड और अलाइन इन सच अ वे कि आपको समझ में नहीं आता दे आर इन एग्जिस्ट इन बॉक्स. ओके, सो लेट्स सी हाउ दे एग्जिस्ट इन बॉक्स. ओके, सो हियर यू कैन सी, देखो जो लेफ्ट में बार है, राइट? ओके, we have got this inside one box only, right? Then later we have got this box as well, right? Let us see this. See, ये भी एक box है. Okay, will be also see, ये भी एक box हो गया, right? Later जो ये image आ रहा है ना, see this all image. Fine. Here is in the box, ये वाला जो image है ना, background में क्या चल रहा है? एक नॉर्मल एक आपका वीडियो चल रहा है, राइट? इसके अंदर सिर्फ दे व्हाट दे हैव डन, दे हैव जस्ट प्लेस्ड द इमेज दिस. What they have done, they have just placed some type of text over here, right? See this type of text, only this text has been rendered here. Fine. और ये जो पीछे चल रहा है, it's just one video out there. Fine. बाद में हम देखेंगे, see even this is one box. See, this is basically one box out here, right? Let us see it. Okay, so here we have got this box, right? तो ऐसा छोटे छोटे इसमें ना सब बॉक्स में डिवाइड होते हैं. Okay, so again see we have got these boxes of images here. Okay, here we have got different types of boxes and box में क्या किया है, they have just placed an images here, right? Okay, so just want to you guys to understand क्या, जो भी हम वेबसाइट देखते हैं ना, each and every website is been made
इन बॉक्सेस, ओके। बट वो बॉक्सेस को ऐसा अलाइन किया रहता है कि आप हमें समझ में नहीं आता कि वो बॉक्सेस में पूरा बना हुआ है, right? So as you can see, now you can able to analyze कि हाँ everything is been made in boxes. Fine, let's go on the other website now. uh, which website we can go? We can go on the Zomato for now and let us see इधर क्या बॉक्स में बना होगा. Fine, so yeah, we have got this, or we can go on the this landing page of this Zomato. Okay, so yeah, let's analyze this now. Fine, so let us take one different color out here. Hmm. And let us increase the size of font. Okay, so देखो ये बेसिकली एक navbar है इधर. Okay, right? So it's been placed in one box only, right? Okay, after that देखो ये जो इमेज है बैकग्राउंड में वो भी एक बॉक्स में उन्होंने प्लेस किया है, राइट? ओके, फिर वो बॉक्स को क्या किया, व्हाट दे हैव डन, दे हैव जस्ट रोट दिस द इनपुट इक्वल्स टू सी. यहाँ पर व्हाट दे हैव डन, सर्च बार दे दिया एक, राइट? Okay, and यहाँ पर they have placed different this inside this box, they have placed different types of text, right? Fine, then उसके बाद see, today we'll be learning how can we make such type of cards. Okay, so आप एक बार cards बनाने सीख जाएंगे, so you can able to make this. Fine, see these are the cards, right? Okay, we'll be learning this all in our today's class. Fine, how these cards been made. Fine, so see, each and everything has been made with boxes, right? Sorry, just remove this. Fine, see ये भी एक boxes में ही है. Okay, so see each and everything has been placed in one box. Okay, यहाँ पर भी एक box में ये see this is one box. Okay, फिर ये भी एक छोटे से box में एक ही है. Okay, this both what we can say, this is one division div tag. उसके अंदर what they have done, they have make two children, this is one children paragraph और यहाँ भी एक paragraph दिया. But what they have done, they have just used the property flex. Okay, तो आज हम flex box भी देखने वाले हैं. Fine, and we'll be also learning the box model. ओके, एंड बॉक्स मॉडल का यूज करके हम कैसा ऐसा कार्ड्स बना सकते हैं, विल बी लर्निंग दैट एज वेल. ओके, सो सी इवन दिस इज वन कार्ड. ओके, एंड वो कार्ड पे व्हाट दे हैव जस्ट यूज्ड दिस प्रॉपर्टी नोन एज पोजीशन, एंड पोजीशन यूज करके व्हाट दे हैव डन, दे हैव जस्ट प्लेस्ड दिस टेक्स्ट ओवर दिस इमेज. फाइन, तो ऐसा हम क्या होता है बेसिकली जो भी वेबसाइट्स होते हैं, ओके, 90 to 95% व्हाट दे यूज, दे जस्ट व्हाट दे डू, दे जस्ट मेक डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स. ओके, सो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाते हैं. कार्ड्स इज नथिंग बट जस्ट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि ऐसा बॉक्स बनाते रहते हैं. फाइन, एंड वो बॉक्स के अंदर व्हाट वी डू, वी कैन यूज इमेजेस, वी कैन यूज टेक्स्ट एंड ऑल दैट स्टफ. फाइन, सो बॉक्स को ऐसा ऐसा अलाइनमेंट करते हैं सो दैट द पर्सन कांट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा क्या बना है. फाइन, सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव जस्ट made four boxes here. Fine, these are the four boxes out here, right? Okay, they have just use four boxes out here, right? और वो four boxes को क्या किया, एक what can say, in a one big box they have just used the property known as flex. Okay, so flex is nothing but it will make all the items inside are this. Okay, inside that one parent box flexible, so due to which क्या हो जाते हैं, जितना उनको पेज चाहिए रहता है, it will just occupy that much. Okay, and they will come in one row. फाइन, सो देखो ये एक बड़ा बॉक्स है. ओके, वो बड़े बॉक्स में वी हैव गॉट फोर इमेजेस आउट या. ओके, फॉर नाउ डोंट वरी, अगर नहीं समझता होगा तो, राइट? बट जस्ट माय वन मोटिव ओवर हियर इज दैट ईच एंड एवरीथिंग इज बीन मेड इन वन बॉक्स, मतलब एवरीथिंग इज मेड इन डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस, राइट? सो सी ये भी एक बॉक्स में बना है. ओके, सो जब आप एनालाइज करोगे ना, इवन यू वुड हैव सीन कि जब हम बॉर्डर देते थे, राइट? सो क्या होता था, बॉर्डर एक बॉक्स जैसा बन जाना था, राइट, इन अ रेक्टेंगल शेप. Okay, so see each and everything has been made in one boxes only, and वो boxes को what we have done, we have just placed in such a way क्या वो आजू बाजू आगे एक one what we can say in one line they have appeared, right? Okay, so we can easily make such type of stuff. Okay, so in our today's class what we will be learning, we'll be learning the important concept known as box model, right? And we'll be also learning the stuff known as flexbox. What does this flexbox is? Just using the this properties of flexbox, we can able to make our website responsive until certain extent.
ओके, बिकॉज आप सर्टेन एक्सटेंट तक आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको थोड़ा मीडिया क्वेरीज लगानी पड़ेगी. बट फॉर नाउ what we will doing will be learning the box model, what is box model and box model को कैसा डिफरेंट डिफरेंट इसमें तोड़ा जाता है. फाइन, तो उसके बाद हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है. फाइन, एंड वो सब यूज करने के बाद विल बी डिजाइनिंग दिस टाइप ऑफ दिस, what we can say, this type of cards in a today's session. Fine, have everyone got it, what we'll be doing in a today's class? Yes. Yeah. Okay, so doing this are so simple. Okay, you don't have to this get panic or anything क्या इतना कुछ hard होगा, it's not like that. Okay, just clear the concept and how we'll be applying it I'll be showing you, okay, in a while. Okay, so before going ahead, okay, before jumping out to the property, as we have done, जब हम टेबल सीख रहे थे तो हम क्या किया था, हमने एक ड्राइंग करके हम समझ लिया था कि इसको प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, राइट. सो विल बी लर्निंग दैट वे इन टुडेस क्लास. फिर उसके बाद हम कैसा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड विल बी लर्निंग, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो कैसा हम इम्प्लीमेंट करेंगे, विल बी लर्निंग दैट. फाइन, सो लेट अस मूव अहेड नाउ. Okay, so what I can do, I can just open one blank page out here, right. Let me open this kit. Yes, so let us assume, hmm, क्या this is your one web page. Okay, ये आपका screen size है. Just understand कि this is your this screen size of your laptop. Okay, now यहाँ पर we have got this. Okay, this is your content. Just assume that this is your content where you write, see, you write different types of texts here, right. So I will just write the content for now over here. Okay, I will just write content, right. And content ko what we get, see, we have got different types of, see, we have got this height, right. So जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वो साइज ले लेता है, राइट. तो समझो ये पूरा इसमें पैराग्राफ है, राइट. सो दिस इज हाइट, ओके, एंड दिस इज अ विड्थ, right. So we can call this is a width. Okay, so let me name this so that you guys can able to remember it properly. So this is the height, and let me edge denote, it's for height and this is for width. Fine. So assume के ये आपका जो भी आपका कंटेंट है उसका बॉर्डर है. व्हाट आई हैव सेड, दिस जो कंटेंट है समझो ये पूरा आपका इसमें पैराग्राफ लिखा है. ओके, उसके बाद हम वी यूज टू गिव बॉर्डर, राइट. सो अज्यूम के ये जो है ना आपका this line over here outside, it's a border for you. Fine, so it's a border for this content. Okay, fine. Now जो inner spacing होती है, right. Okay, जब हम ये पढ़ रहे थे, you might have जो हमारा inner spacing होता है we call that as padding, right. Okay, so जो inner spacing होता है, right, so these are the inner spacing. So जो border और content के बीच का spacing होता है उसको हम क्या बोलते हैं, we call that as padding, right. Many of will be aware of this, what does this padding is. Fine, so content or this is our border. Okay, or else what I can do, I will change the color of this border. Okay, let me draw it once again. हम ऐसा ओवर रिटर्न करते हैं. फाइन, जो ये रेड कलर का है ना, फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ बॉर्डर, राइट. एंड ये जो बॉक्स है इट्स अ कंटेंट. तो जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेसिंग होता है ना, वी कॉल दैट स्पेस एज पैडिंग. ओके, सो जब आपको बॉर्डर और समझो आपका कंटेंट उसके बीच में आपको स्पेसिंग देने को होगा, सो ड्यूरिंग दैट टाइम विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टी नोन एज पैडिंग. ओके, हाउ विल बी यूजिंग दिस, विल बी सीइंग इट इन अ फ्यू व्हाइल, डोंट वरी. ओके, एंड व्हाट आई विल बी सेइंग, जो ये आउटर मतलब जो आपका बॉर्डर रहता है, दिस रेड कलर इज अ बॉर्डर, राइट. और जो आउटर स्पेसिंग होता है ना, सी, ये जो आउटर स्पेसिंग होता है, राइट, वी कॉल दैट एज एन मार्जिन. ओके, सो आउटर स्पेसिंग को हम क्या बोलते हैं, वी जस्ट कॉल दैट एज मार्जिन. ओके, फाइन. सो आउटर स्पेसिंग इज कॉल्ड एज मार्जिन. फाइन, इनर स्पेसिंग को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग. और जो है अपना कंटेंट के बीच का जो हमें बॉर्डर देते हैं, वी कॉल दैट एज बॉर्डर. ओके, सो बॉक्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग, बॉर्डर, पैडिंग एंड मार्जिन. तो कंटेंट को हम क्या क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव बॉर्डर टू इट, राइट. सो हम वी हैव गिव द बॉर्डर हियर. ओके, जो इनर स्पेसिंग को वी कॉल इट एज पैडिंग, राइट. एंड वी कॉल द आउटर स्पेसिंग, मतलब जो आपका बॉर्डर के बाहर का स्पेसिंग होता है, वी कॉल इट एज मार्जिन. फाइन, एंड जो ये आपका डायरेक्शन होता है, एज यू गाइज नो, इट्स अ टॉप डायरेक्शन, it's a right direction, then we call this direction as bottom.
right? Not as down, we call that as bottom, and this we call as left. Fine. So टॉप राइट बॉटम लेफ्ट राइट, एंड जो कंटेंट के हमें इनर स्पेसिंग रहता है, जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में होता है, वी कॉल्ड इट एज पैडिंग. ओके, एंड जो कंटेंट के बाहर होता है, ओके, जो हमारे वेबसाइट और वी कैन से हमारा स्क्रीन होता है ना, उससे हम दूसरे इसके साथ ये करते हैं. फाइन, वी कॉल दैट एज मार्जिन. फाइन. सो नाउ आई गेस आपको इतना कुछ थोड़ा है तो आइडिया मिला होगा क्या व्हाट डज दिस पैडिंग मार्जिन एंड दिस इज. फाइन. बॉर्डर मीन्स, okay, so box model is nothing but it's a combination of three stuff. Okay, so box model consists of three stuff, that is first one is the border. Fine. The second one is we call it as padding. Okay, and third one is we call it as margin. Okay, so we'll be learning today this stuff. What is border? How can we give border to it? Right. Then we'll be learning what is padding. How can we give padding to our this content? Fine. And later we'll be learning the margin. Fine. So we'll be learning this first. Yeah. Fine. And we'll be seeing how can we able to make such type of cards. Yes, so have everyone got basic idea क्या content के अंदर how can we give border, or we can say what is the border, what is the padding and what is the margin. Basic idea मिला है, थोड़ा overview मिला सबको. Yes, थोड़ा सा भी मिला रहेगा तो it's good. Fine, don't worry, जब हम अभी practically जब हम कोड से देखेंगे, during that we will be getting good idea over there. Fine, but have everyone got one basic idea from your? Yes. Fine, so let's move ahead now. Okay, so what we can do, we can just create one, uh, so yo let's create one folder out as an css d3, right? Let us open this with a VS Code. Hmm, let's make two pages out here. Index.html. Finally, let us make one more page for styling. Style.css. Perfect. Let's do a boilerplate and let's link a CSS file slash CSS, and you can call this as CSS d3. Perfect. So this is a CSS file and this is the index file. Let me zoom it and let me close this. Okay, fine. So let us move ahead now. So first of all हम देखेंगे border कैसा दिया जाता है. Okay, so what can we do? We can take one paragraph out here of lorem of dummy text of, can takes of 50 words for now. Right, now let us open this with NVS, this live server. Fine. Yes, we have got this text here, right? Okay, now we'll be applying the border. Okay, the first property we'll be seeing here is border. Okay, so hmm, let's go over here. Let's give the ID to it as in para1 for now. Yes, and let us go and style it one by one. Okay, so we have given the ID as in para1 now. Fine. Okay, so we'll be giving border. Okay, one by one. Okay, so border ka what we done, it's been basically divided into three part. Okay, border कितना आपको उसका width के लिए देना है, thickness. Okay, so we call it as border width. Okay, then we have border style. border का style क्या होगा, and border color. ये border आपका basically तीन इसमें divide होता है, border width, border style and border color. Okay, let's see first one known as border style. Okay, so I can say I want a border style of solid font. Okay, now as soon as I apply this, आपको कुछ दिखेगा नहीं. Reason behind this is, देखो, we have got one border by default. Don't worry, fine. But have you specify any this? That is, someone have come now. Fine, but do we have specify any मतलब border का width क्या होना चाहिए in this color? By default, as soon as you apply this border, fine, वो क्या करता है? It's take by default क्या उसका जो size होगा, it will take 1 pixel width. Okay, जो आपका thickness होता है ना border का, we call that as border width. Okay, and जो अपना ये होता है color, what does we have not wrote the color of your. Okay, solid is nothing but जो आपका border है वो कौन से type का है. Okay, now let me write, instead of solid if I write dotted
So now you can see हमें border मिला रहेगा, it would be in dotted form. Okay, so it's over here. See, however you can see. Can you guys able to see it? देखो dotted इसमें हमें border मिला है, right? And see, we have different types of this border style. में we have got different types of options या values. So solid का मतलब see, we have got solid. तो solid मतलब क्या होगा? See, it's like in a solid form, continuous solid इसमें दिखेगा आपको form, right? Then we have got the other stuff. The second one we have seen dotted, right? Then we have got dashed as well. Dash मतलब आपका border होगा, it will be in dash. Okay, let's see dash one now. Okay, so see now instead of dotted जैसे ही होता है, but instead of dot हमें किससे रिप्लेस हुआ है? डैश से रिप्लेस हुआ है, राइट? So हमारे पास और भी बहुत सारी वैल्यू होती है. लेट अस ट्राई द लास्ट वन, दैट इज आउटसेट. आउटसाइड इज नथिंग बट आउटसाइड उसका बॉर्डर आएगा. सी यहाँ पर जो इनर बॉर्डर है ना, सी दिस वन टॉप और एंड द लेफ्ट वो लाइट में होगा, बॉर्डर है बट सी यहाँ पर हमें लाइट में बॉर्डर दिया है. ओके, वेयर इज आउटसाइड इज नथिंग बट दिस बॉर्डर ऑन द राइट एंड ऑन द बॉटम विल बी गेटिंग वन थोड़ा मतलब डार्कर दिस बॉर्डर, राइट? ओके फाइन. एंड इफ आई यूज द इंसेट, सो इंसेट में हमें क्या वैल्यू मिलता है? विल बी गेटिंग द बॉर्डर ऑन द टॉप एंड द लेफ्ट, और जो राइट और बॉटम है उधर हमें इतना डार्क वाला बॉर्डर नहीं मिलता है, राइट? ओके, बट वी बेसिकली यूज द दिस स्टाइल एज सॉलिड. ओके, हम हमेशा सॉलिड ही यूज करते हैं. फाइन. ओके, सो हमने पहला देखा बॉर्डर स्टाइल. ओके, तो हमें कौन सा टाइप का बॉर्डर चाहिए? द सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव, दैट इज बॉर्डर विड्थ. ओके, सो लेट्स लुक आउट टू दिस प्रॉपर्टी नोन एज बॉर्डर विड्थ. ओके, बॉर्डर विड्थ मतलब आपका जो बॉर्डर है उसको कितना थिकनेस का आपको चाहिए. तो इफ आई से 10 पिक्सल, सो लेट अस सी हमारा जो ये होगा सी, जो आपका थिकनेस होता है ना बॉर्डर, इट्स नाउ 10 पिक्सल, राइट? बाय डिफॉल्ट इट वाज 1 पिक्सल ड्यू टू विच आपको क्या दिख रहा था? वो इट्स वाज इन थिन दिस, राइट? It was having one small thinner shape, right? The border was having one small thinner this size. Okay, whereas if I want to do it manually, so I can say border width and you can adjust as per your choice. Fine. So as I have said, border width आप क्या define करते हैं? आपका thickness of your border, right? The third property we call it as border color. So by default the color was black, but if you want to change the color of it, we can make as it is I want. So if I make it blue violet for now, you'll be getting the violet color out here. Okay, so let us see. You have got the this border of 10 pixel. This border style is known as solid. Fine. And हमें color कौन सा दिया है? We have give color as blue violet. Perfect. Okay, now if I want to make changes over here and make it to blue, right? So I'll be getting the this as blue. फाइन. तो बेसिकली आपका बॉर्डर किस में डिवाइड होता है? तीन इसमें, राइट? बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर. ओके, नाउ writing this all this value we have got one shortcut. Okay, and we call that shortcut as आप क्या लिखते हो? Instead of writing border style, border width, border color, you directly write the statement known as border. I want a border of, पहला आपको लिखना होता है उसका कितना width चाहिए. तो I will be writing 1 pixel. I just instead of 1 pixel I can write 10 pixel. I want 10 pixel border. This width of your this. Okay, border. Fine. 10 पिक्सल. आपको उसके बाद स्टाइल बोलना होता है आपको कौन सा चाहिए. तो इफ आई वांट सॉलिड आई कैन राइट सॉलिड, डॉटेड आई वांट डॉटेड, और डैश आई वांट डैश. ओके, सो लेट अस लुक फॉर डैश फॉर नाउ, right? So I'll be saying I want 10 pixel this with border. Then later I will be saying the border style will be dashed. Okay, and later we have to specify the color. So if I write red, so now our border will be of 10 pixel, the style type will be dashed, and now color will be red. Okay, so now let's look out it. तो सी हमें क्या मिला है? डैश वाला मिला है, राइट? बॉर्डर. ओके, कलर कौन सा है? कलर इज रेड. एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस? जो आपका थिकनेस है इट्स 10 पिक्सल. Fine. So this is the shortcut we basically make use of, right? So in a earlier this, while we were learning CSS as well, in a earlier properties, so during that time we used to write 10 border 1 pixel solid red. Fine. Okay, so this is the shortcut way we basically make use of. Okay, instead of writing all these 3 lines, okay, we always make sure कि आपका जो भी कोड है वो फटाफट से आप लिखो, राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप इस टाइप के इसमें ही लिखोगे. सो बॉर्डर इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू specify the width of your border, right? Then later you have to specify
what type of border style you want to give, and third is the border color. Fine. Okay, so have everyone got it? How can we give border? Yes. Have everyone got idea how can we give border to this content? सबको समझा? Yes. Okay, so which are the three property we have in border? Which three property do we have border? Border के basically three properties क्या होते हैं? Not this one. Border style, width and color. Exactly. You are Anurag. You are saying the border style के इसमें कौन से values do we have? Fine. Basically हमारे border तीन इसमें divide होते हैं, width, color and border style. Right? Okay. Now हमें क्या होता है? See, each and every border will have some type of radius. What do I mean by radius? Okay, so let me give an example of, instead of doing dash, let me give as solid. Okay, now आपने देखा होगा, see we have got this. Okay, radius is nothing but curveness, जो आपका border का end होता है ना, this curve on this side, that is top left side and this side. Okay, इसको हमें अगर हमें उसको कर्व बना रहे हैं, मतलब थोड़ा instead of getting this pointed shape I want थोड़ा circular shape. Okay, rounded shape चाहिए होगा, so during that time you can use the property known as border radius. Okay, now let me make you understand what does this border radius is. Okay, so let's see one by one. Okay, so let's see, if I want to give the border on this location, we call it as top left. Okay, see this is a top and this is a left, right? Okay, so let us write it here itself. Okay, so ये जो corner है, right? We call it as top left. So I will write top left because this is a top and this is a left, right? What it will be here? It will be bottom left, right? What does this space or this location will be known as? Top right. And what does this last one will be known as? फटाफट से, what does this last one क्या होगा वो? It will be which direction or which location it would be? फटाफट से. Bottom right, exactly. फाइन. ओके, सो हमें क्या होता है, अगर हमें आपको सभी डायरेक्शन में देना है तो उसके लिए शॉर्टकट है. वेयर आपको हर एक इस पर, मतलब एक एक साइड पर भी देना है, दैट इज टॉप लेफ्ट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट. राइट, सो आपको ऐसा देना है तो वी कैन गिव दैट एज वेल, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन आल्सो गिव ऑन ऑल द फोर साइड एट वंस. राइट, सो लेट अस लुक दिस हाउ कैन वी गिव इट. ओके, सो आपको अगर कर्वनेस चाहिए ऑन दी top right. Okay, so you have to say border radius. Okay, okay, so you can say border top left radius. Okay, so that means आपको कौन से साइड पे देना? फर्स्ट ऑफ ऑल border on the top left. Okay, and I want to give the radius of it. Okay, so let me write off 20 pixel for now so that you guys can able to visualize it. Okay, so it would be here. So see हमें क्या मिला इधर? 20 पिक्सल का कर्वनेस मिला है, right? We have just got on the top left. Okay, similarly आपको कौन से साइड में देना है? On the top right. So you can say border top right radius. Fine, so I will be writing border top right radius. Okay, now let me give it of 10 pixel for now. Okay, so I have set top right as 10 pixels. So हमें इधर थोड़ा कम कर्वनेस मिला है. Here we have got the more कर्वनेस. Fine, now I want to give on the border, on the bottom left radius of, let us give of 30 pixel. Okay, so now you would have seen कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कर्वनेस आ गया, right? Okay, and let us give a 5 pixel on the bottom right. Okay, so I will say border on which side we want? On the bottom, this right side of 5 pixel. राइट, सो हमें कितना पिक्सल का ऑन दी राइट साइड मिलेगा? 5 पिक्सल कर्वनेस मिलेगा. राइट, सो इन दिस वे इफ यू वांट टू गिव बॉर्डर, मतलब थोड़ा आपको बॉर्डर में कर्वनेस राउंडेड टाइप शेप चाहिए होगा. राइट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम सी दिस इज अ 100 इसमें. हाँ, नाउ इट्स बीन परफेक्ट. सो सी हमें क्या मिला है? हमें वी हैव गिव फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर टू दिस ऑफ हाउ मच? 10 पिक्सल सॉलिड रेड, और हमने उसको क्या दिया है? हरे हरे बॉर्डर रेडियस दिया. बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर रेडियस नथिंग बट जब आपको अपने बॉर्डर के एजेस पर
थोड़ा कर्वनेस चाहिए रहता है, राउंडेड पार्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी नोन एज बॉर्डर रेडियस. फाइन. सो बॉर्डर रेडियस का हम अगर चारों साइड में देना है तो वी कैन गिव इट वन बाय वन, और अगर आपको एक साथ एट अ टाइम सब इसको देना है तो यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस मेनी स्टफ यू जस्ट हैव टू राइट border radius. So now it would have been applied on each side. Let me give of 20 pixel for now. So अभी ये चारों डायरेक्शन पर जाके अप्लाई होगा, राइट? चारों एजेस पे जाके it would be applied. So see, चारों एजेस पे equal 20 pixel का what we have got? We have got border out here. Okay, so even this property is important because when we will be making cards, we'll be always keeping का जो हमारा कार जो आपका कार्ड्स होते हैं, और we can say when you हाँ बटन को जब आप अपना बैकग्राउंड कलर देते हो, और व्हाट एल्स वी कैन गिव द बॉर्डर टू अ बटन, और एल्स ड्यूरिंग आ बटन वी ऑलवेज मेक क्या हमारा जो बटन के कॉर्नर्स होते हैं ना, वी विल ऑलवेज मेक इट राउंडेड. रीजन बिहाइंड दिस इज जब हमारे ह्यूमन आई होता है, इट इज मोर what we can say attractive and suitable in seeing the rounded object instead of seeing the pointed one. Fine. So let's go on the Zomato, and even here you can see हमारा जो यहाँ पर है, जो हमारा इमेज का this we है, it's been rounded out, right? Similarly यहाँ पर भी it's rounded out, right? Okay. Whereas let's go and see कहाँ पर हमें बटन मिला है क्या. See यहाँ पर भी अगर आप अच्छे से देखोगे, okay, let me zoom it so that you guys can able to, यहाँ पर जो उन्होंने बॉर्डर दिया है, it's been कर्व. रीजन बिहाइंड इसे जब आप कर्व को देखते हो तो हमारे आईज में एक सॉफ्टनेस आता है, राइट? तो यहाँ पर व्हाट दे हैव गिव, दे हैव गिव 1 पिक्सल सॉलिड some type of grayish color. Grayish maybe they have chosen the lightish color. Fine. What they have done, they have also gave this type of what we can say radius. तो border radius they have used such that क्या वो आपको ह्यूमन आई को इट विल बी वेल सुटेबल, और उनको थोड़ा ऐसा व्हाट वी कैन से इट वोंट लुक दैट कैची एज वेल. तो ह्यूमन को समझ में ही नहीं आएगा कि वी हैव आल्सो गिवन दैट टाइप ऑफ बॉर्डर आउट हियर. फाइन. सो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे हैव गिवन ऑफ वी कैन से ऑफ 3 to 4 or 5 पिक्सल, विल बी सीइंग इट. फाइन. इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस हमें कितना देना है. फाइन. ओके. Okay, so this is how we can give border radius. See each and everything. See even your button you can see, right? देखो जो ये बटन है यहाँ पर what they have done, हमारा वो बटन थोड़ा बॉड मतलब what we can say it's not in a एज जैसा नहीं, जैसा हमारे बॉक्स आया, ओके okay, वो वैसा नहीं है. what they have give, they have used the border radius, और उससे वो थोड़ा कर्वनेस दिए due to which it looks softiness to our eye. Okay, so this is a property we'll be using each and every time we'll be designing or making any cards. Okay, so this is a property we'll be always making use of, that is border. Okay, and the next part it is border radius. Okay, so have everyone got how can we give border radius to our cards and other stuff? Yes, कैसा हम हमारे कंटेंट के बॉर्डर को हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं. Yes, everyone got it. And how can we give border to our content? Have everyone got it? सबको समझा है अच्छे से? Yes. Yes, do everyone got it? How can we give border to others content, and how can we give border radius? Yes, amazing. Okay, now we'll be moving out to a second property known as padding. Fine. So let's look after this. Okay, so border का सबको समझा है. Now we'll be moving forward known as padding. Okay, so padding is nothing but as I have said, it's the inner spacing जो कंटेंट और बॉर्डर का बीच का स्पेसिंग होता है, वी कॉल इट एज पैडिंग. ओके, सो लेट्स गो ओवर हियर. सो देखो यहाँ कंटेंट एंड बॉर्डर है. डू वी हैव एनी स्पेसिंग आउट हियर? नो. बट if you want some type of spacing between this border and this called as content, okay, so during that time we can use a property known as padding. Okay, so let's see one by one how can we apply padding to this. Fine. So how can you give it? See, अगर आपको टॉप में देना होगा तो you call nothing but padding top and you can give in the pixel, right? Similarly आपको अगर लेफ्ट में देना होगा तो you can say padding on the left and you can give in the pixel. Similarly आपको bottom में देना होगा you can write padding bottom and you have to specify how many pixel padding do you want. Similarly अगर आपको right में देना होगा, right, so during that time you have to specify the border on the right, sorry not border, padding on the right of this many pixel. Fine, so let's see it. How can we do it? Okay, so I'll be saying here, I'll be giving the padding on the top of it. Okay, so I'll be saying padding on the top of how many pixel do we want. Now let us say of 50 pixels so that हमें visible होगा. So I have given the padding on the top of 50 pixel. Let's say it. So see, हमारा जो कंटेंट है अभी इनर देखो, जैसा as I have said, inner spacing is nothing but we call it as padding, right? So अभी क्या हुआ है, वो इनर लिया, हमारे बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग दे दिया है, right?
of how many pixel on the top of 50 pixel, right? Now I want to give on the left. Okay, so I can say padding on the left of how many pixel I want. Now let us say of 100 pixel. ओके तो हमें लेफ्ट से कौन सा कितना पिक्सल का ये मिलेगा 100 पिक्सल का सी टॉप से 50 मिला है लेफ्ट से 100 पिक्सल राइट नाउ आई वांट ऑन द राइट सो आई कैन से padding on the right of how many pixel I want let's say of 30 pixel for now right so now हमें थोड़ा 30 pixel का यहाँ से spacing मिलेगा see we have got 30 pixel spacing if you want to visualize this more instead of we can give it to 100 so now हमें ज्यादा spacing मिला Fine. So now I've said I want a padding on the right of 100 pixels. Now you can guess हमें right से कितना pixel का padding मिला? I've got the padding of 100 pixel. Right now अभी हमें कौन सा padding बचा है on the bottom. Right. So how I can say I want the padding on the bottom of how many pixel? Let's say of 50 pixel. Right. So I've said I want a padding on the bottom of 50 pixels. So now we have got a padding of 50 pixel. राइट नाउ इसमें भी लिखने के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं ओके हाउ कैन वी डू राइट ओके सो यहाँ पर हमें दो शॉर्टकट मिलते हैं सो दिस आर ऑल आर द फोर प्रॉपर्टीज टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम नाउ आई कैन राइट आई वांट अ पैडिंग ऑफ 50 pixel and 100 pixel what do I mean by these two values is first value will be applied on top and bottom तो टॉप एंड बॉटम को हमें क्या मिलेगा 50-50 पिक्सल ओके एंड लेफ्ट एंड राइट में हमें मिलेगा 100 पिक्सल ओके सो जब आप दो वैल्यू स्पेसिफाई करते हो तो क्या करता है टॉप एंड बॉटम को कितना पिक्सल दे देगा 50 पिक्सल एंड सेकेंड वैल्यू जो होता है इट विल बी अप्लाइड ऑन द राइट एंड लेफ्ट ओके सो हमारा हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम द टॉप राइट बॉटम लेफ्ट मतलब जो डायरेक्शन में हमारा ये होता है घूमता है राइट ओके इट फॉलो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नथिंग बट हमारा जो क्लॉक्स के हैंड्स होते हैं राइट इट रोटेट इन विच डायरेक्शन इन डायरेक्शन नोन एज क्लॉकवाइज ओके सो जो हमारा रोटेशन होता है राइट सो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ओके सो उसके लिए हमने क्या किया है टॉप एंड बॉटम को कितना पिक्सल हुआ है 50 पिक्सल ओके जब दो वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे तो क्या लेता है फर्स्ट वाले वैल्यू को कभी किसको अप्लाई करते हैं टॉप और बॉटम को अप्लाई करेगा और जो दूसरा वैल्यू होता है इट वुड बी अप्लाई ऑन द लेफ्ट एंड राइट ओके सो व्हेन यू आर डेवलपिंग तो अगर आपको ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आपको दो साइड में मतलब अलग स्पेसिंग देना और लेफ्ट एंड राइट को अलग स्पेसिंग देना है तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी शॉर्टकट नोन एज पैडिंग एंड उसके बाद आप क्या करोगे you can specify two value the first value will be applied on top and bottom and the second value will be applied on left and right okay so let us go and see the output now okay so now you can see कुछ फर्क नहीं है बिकॉज यहाँ पर जैसे हमने दिया था टॉप को 50 दिया था बॉटम को 50 दिया था तो 50 डाल दिया लेफ्ट और राइट को 100 दिया था तो 100 डाल दिया फाइन बट अगर आपको अलग अलग डायरेक्शन पर अलग अलग ये चाहिए रहेगा तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इंडिविजुअली वन बाय वन आप इसको एक पैडिंग यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसा करने के दोनों साइड सेम है और दो साइड मतलब टॉप एंड बॉटम में सेम है और लेफ्ट एंड राइट में सेम है तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस शॉर्टकट ओके वेयर हमारे पास और एक शॉर्टकट है वहां पर आप कब यूज करोगे जब आपका चारों साइड का डायरेक्शन में जो पैडिंग है वो सेम है फाइन तो आई वांट क्या पैडिंग ना ऑल दी फोर डायरेक्शन में इस ऑफ 100 पिक्सल तो अभी ये एक वैल्यू का मतलब क्या होगा टॉप में भी 100 पिक्सल का पैडिंग चाहिए राइट में भी 100 पिक्सल का पैडिंग चाहिए बॉटम में भी 100 पिक्सल का पैडिंग चाहिए whereas even on the right I want a padding of 100 pixel okay so all the four direction will be applied the padding of size of 100 pixel okay so if you want to give padding of equal size on each side during that time I can just say padding of 100 pixel when I want to give the padding of different side but on the top and on the bottom I want it should be of same this right so same size so during that time I can make use of this padding shortcut that is on the top and bottom I want of 50 pixel as per your size you want right you have to specify the size on the top and bottom आपको कितना चाहिए and left and right आपको कितना चाहिए but whereas जब आपको अलग अलग हर डायरेक्शन में देना होगा during that time you can make use of this padding top padding left padding right and padding bottom राइट सो अभी पैडिंग 100 दिया है सो नाउ इट इंप्लाइज क्या हमें चारों डायरेक्शन में 100 पिक्सल का गैप चाहिए सो सी ईच एंड एवरी डायरेक्शन हमें कितना पिक्सल का गैप मिला 100 पिक्सल यस हैव एवरीवन गॉट इट व्हाट डज दिस पैडिंग मीन
and how can we apply it on all the four direction? Have everyone got it? Yes, अमेजिंग. और कौन से डायरेक्शन में वो स्टार्ट होता है, कौन से डायरेक्शन में एंड होता है? स्टार्ट फ्रॉम वेयर? कौन से डायरेक्शन से हमारा स्टार्ट होता है? टॉप, देन आफ्टर टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट. एग्जैक्टली right, it goes in clockwise direction. Okay, fine. So have everyone got it? What does this padding means? अभी सबको समझा है padding क्या होता है? Exactly. Okay, have everyone got this? What does this padding mean? Because बच्चे लोग padding और margin में हमेशा क्या करते हैं? Confuse हो जाते हैं. Okay, for that reason I am been making you understand कि ये padding क्या होता है और margin क्या होता है, right? So padding अभी सबको समझा है. What does this padding is? Yes, सबको समझा है. What does this padding is? It's nothing but the inner space between the border and the content. ओके, जब हमने ड्रॉ करके देखा था तब भी हमने वही किया था. कंटेंट और जो हमारा बॉर्डर होता है उसके स्पेसिंग, इसके अंदर के स्पेसिंग को भी कॉल इट एज पैडिंग. ओके, वेयर एज हमने ये भी करके देखा, ये हमारा कंटेंट है राइट. उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर है और इसके अंदर का स्पेसिंग को भी कॉल इट एज पैडिंग. यस, हैव एवरीवन गॉट इट? व्हाट डज दिस पैडिंग इज? अभी सबको अच्छे से समझा है? Amazing. Okay, now let us move ahead and see what is margin. Okay, so margin is nothing but outer spacing, right? So let's move ahead and see what does this margin is. Fine. So जैसा हमारे पास यहाँ पर पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, लेफ्ट एंड बॉटम था, हम उसको मार्जिन भी वैसे यूज कर सकते. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. इफ आई से margin on the top of 100 pixel. ओके, लेट मी कमेंट आउट एंड सी हमारे पास मार्जिन क्या होता है. मार्जिन इज नथिंग बट जो आपका आउटर स्पेसिंग होता है. ओके, सो आउटर स्पेसिंग मतलब जो आपका कंटेंट का बॉर्डर है उसके बाहर का स्पेसिंग. सो डू वी गॉट, सी हमारे पास बाय डिफॉल्ट ना, समझो अभी था, बाय डिफॉल्ट ईच एंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैव सम टाइप ऑफ मार्जिन. ओके, वो हम कैसा देखते हैं, विल बी सीइंग दैट एज वेल इन अ टुडेस क्लास, डोंट वरी. बट बाय डिफॉल्ट ना, each and every HTML tag will have by default margin. Okay, so now you can see हमें देखो यहाँ से थोड़ा ऊपर से स्पेस छूटा है. रीजन बिहाइंड दिस इज हर एक HTML टैग को एज आई सेड मार्जिन होता है. ओके, तो इसके लिए जो रेड लाइन है वो ऊपर से, मतलब हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेसिंग दिया, तो यही स्पेसिंग को भी कॉल इट एज मार्जिन. ओके, सो बाय डिफॉल्ट हमें इतना मार्जिन दिया है, बट अगर हमें और मार्जिन देना है ऑन द कौन से भी डायरेक्शन में, ओके, इट कैन बी ऑन द टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम. सो हाउ कैन वी गिव इट? विल बी गिविंग इट बाय द प्रॉपर्टी नोन एज मार्जिन. ओके, सो नाउ आई वांट द मार्जिन थोड़ा ऊपर के, इसमें और स्पेसिंग है, जो बॉर्डर के बाद ऊपर स्पेसिंग है ना. ओके, आई वांट टू गिव मोर स्पेसिंग टू इट, सो आई विल बी सेइंग margin on the top of 100 पिक्सल. तो मुझे 100 पिक्सल का मार्जिन चाहिए फ्रॉम द टॉप. सो नाउ यू कैन सी हमारा ऊपर से कितना स्पेसिंग मूव हुआ है, ऑफ 100 पिक्सल. फाइन. सिमिलरली आप लेफ्ट से दे सकते हो, राइट से दे सकते हैं, बॉटम से दे सकते हो. सो लेट्स डू इट. सो आई कैन से margin on the left of how many pixel? Now let us say of 70 pixel. Okay, so I have said margin on the left of 70 pixel. Now I will be getting C. हमें यहाँ से मार्जिन आ गया राइट. सिमिलरली अगर मुझे राइट से भी चाहिए रहेगा तो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर. इंस्टेड ऑफ राइट लेफ्ट आई कैन से राइट. Okay, and let me give off 50 pixel for now instead of giving 70 pixel. So I want margin on the right of 50 pixel. So you can see यहाँ से हमें 50 pixel क्या है. अभी आपको इधर नीचे दिखेगा नहीं, रीजन बिहाइंड दिस इज, हाँ रुको मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बना देता हूँ इसके नीचे, so that आपको अच्छे से समझ में आएगा. Okay, of lorem of 100 words. Okay, so see, this is a second paragraph right, और ये पैराग्राफ को हम स्टाइल दे रहे हैं. Okay, so do we have any this? See, ओके, हमने मार्जिन दिया था तो इसके लिए हमारा क्या हुआ था, यहाँ से हमारा जो बॉर्डर था उससे वो जो हमारा पैराग्राफ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और इसको इनर स्पेसिंग को भी कॉल इट एज पैडिंग. ओके, नाउ यू कैन सी हमारे पास मार्जिन बॉटम थोड़ा सा, ये वी कॉल इट एज बाय डिफॉल्ट मार्जिन डू वी गेट फ्रॉम ईच एंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट्स. ओके, बाय डिफॉल्ट हमें एचटीएमएल एलिमेंट में भी मार्जिन दिया जाता है. फाइन. ओके, बट आई वांट कि यहाँ पर थोड़ा और स्पेसिंग है बिटवीन दिस कंटेंट राइट. सो आई कैन से आई वांट द मार्जिन, सी हियर दिस वन राइट, जो हमने पैरा वन है, दिस इज अ पैरा वन राइट, डोंट गेट कंफ्यूज. हाँ, ये मैंने पैराग्राफ इसलिए लिया है जो आपको विजुअलाइज करने में इजीली होगा कि हम मार्जिन बॉटम से सच में मार्जिन बॉटम आ रहा है कि नहीं.
So I have said I want a margin bottom of 100 pixels. So now you can see हमें जो नीचे का spacing मिला रहेगा, see we have got the margin okay of 100 pixel. Fine. So यहाँ पर भी we have this option known as shortcuts. तो आपको shortcut में देना होगा. So अगर आप दो यूज करोगे दो वैल्यू, so it will be applied on, see first value will be applied on top and bottom and the second value will be applied on left and right. Okay, so let's see it. See हमें अभी टॉप एंड बॉटम से क्या मिला है, जस्ट वेट. हाँ, यहाँ से हमने क्या किया है, इसको भी हमने कमेंट डाउन किया था, उसके लिए हमारा क्या हट गया था, पैडिंग हट गया था, राइट. पैडिंग रहने देते हैं. फाइन. नाउ हमने क्या किया, मार्जिन दो वैल्यू दी है, टॉप एंड बॉटम में कितना पिक्सल का दिया, 50 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट में वी हैव गिवन ऑफ 100 पिक्सल. सो लेट्स विजुअलाइज इट. सो सी टॉप एंड दिस बॉटम कितना पिक्सल का है, वी हैव गॉट ऑफ 50 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट वी हैव गॉट ऑफ 100 पिक्सल, right, and एक value दोगे तो it would be applied in all the four direction that we have seen in this padding stuff, right. Okay, so now 100 pixel top, right में 100 pixel, bottom में 100 pixel and left में 100 pixel. Yes, have everyone got this now? Margin क्या होता है? Yes, and how can we give margin? Have everyone got it? समझा सबको? Have everyone got it? What does this margin is? Yes, amazing. Fine. Okay. Now we'll be looking out for the property known as box sizing. It is nothing but I will be visualizing it now. Okay, but before going ahead, each and every property box model का सबको समझा है? Yes. Have everyone got this idea? What does this box model property are? Box model के properties कितने इसमें divide होते हैं? Border, padding and margin. Yes. बॉर्डर कैसा अप्लाई करते, वी हैव सीन इट. पैडिंग कैसा हम करते वो भी देखा है, मार्जिन भी देखा कैसा अप्लाई करते हैं. यस, हैव एवरीवन गॉट इट? सबको अच्छे से समझा है? किसको कुछ डाउट है? यस, अमेजिंग. फाइन, राइट. नाउ लेट अस मूव अहेड. यस सर, एकदम अच्छे से समझा. या ग्रेट. ओके, नाउ विल बी मूविंग अहेड. ओके, वहां पर हम प्रॉपर्टी नोन एज बॉक्स साइजिंग. Okay, what does this box sizing is? I'll be making you understand because each and everyone will be getting this. We can say ऐसा प्रॉब्लम आता है. It's not a problem. You can say it will be one condition जहाँ पर आपका ना बॉक्स का साइज इंक्रीज होता रहता है. रीजन बिहाइंड दिस जब आप आपका what we can say you apply the border padding and everything. So to be honest, आपका बॉक्स का साइज तो बढ़ेगा, राइट. सो बॉक्स साइज इन वो प्रॉपर्टी होता है जहां पर आपका बॉक्स का साइज उतना को उतना ही रहेगा, भले ही आपने उसको मार्जिन लगा दिए, सॉरी नॉट इन मार्जिन, पैडिंग लगा दिए हो या बॉर्डर, right. So let's visualize it, okay, by seeing the example out here. Fine. So what I'll be doing, I'll be making two boxes out here. Okay, so I'll be making two boxes out here, so I can say div over here. Okay, and let me give the class of box 1 here. I can say box 1 here. Okay, similarly I will copy this, I can say box 2 over here, right. Let's move ahead now. तो हमने क्या किया, अभी दो boxes बनाए यहाँ पर. Okay, now let's style this box 1 और box 2 का हम style करते हैं. So हमने क्या दिया था, class दिया था. So now I can say I want the width of each box should be of 300 pixel and height of 300 pixel. right. Okay, similarly हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ इसको एक ये बॉक्स को हम दे देंगे बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, राइट. और सेम प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, दूसरे बॉक्स को भी अप्लाई कर देंगे, बट उसको हम दे देंगे कलर ऑफ विच कलर, वी कैन गिव सम टाइप ऑफ ब्लू, राइट. फाइन. So instead of this is a box 2, right. Let us see these both boxes out here now, right. It would be here, sorry. So हमें दो boxes मिले, right. Okay, or else we can reduce the size of it to 200. So now you can see we have got the size of 200 pixel, two boxes out here, right. Instead of writing the box 1 on the second box, I can say it's a box 2, right.
नाउ लेट अस विजुअलाइज दिस. ओके, जहां पर हम क्या करें, सी अभी यहाँ पर हमने विड एंड हाइट दोनों बॉक्स का क्या रखा है, सेम. ओके, मैं अभी क्या करूंगा, एक बॉक्स को हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर लगाते जाएंगे और पैडिंग लगाएंगे, ड्यू टू विच हमारा क्या होगा, बॉक्स का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. राइट. सो लेट्स गिव द बॉर्डर. बॉर्डर हम बॉक्स वन को थोड़ा क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 पिक्सल आई विल बी राइटिंग 20 पिक्सल बॉर्डर चाहिए मेरे को. ओके, पैडिंग मेरे को लगेगा ऑन ईच साइड ऑफ 20 पिक्सल. सो हमारा बॉक्स वन का साइज क्या होगा, अभी बढ़ेगा. राइट. ओके, टू बी ऑनेस्ट तो बढ़ना ही चाहिए. राइट. तो देखो हमारा बॉक्स वन का जो साइज है वो कितना बढ़ गया, देखो इतना बढ़ गया. वेर एज हमारा बॉक्स टू का साइज देखो एज इट इज उतना ही है. रीजन बिहाइंड दिस इज हमने उसका बॉर्डर भी नहीं बढ़ाया ना, वी हैव गिवन पैडिंग. राइट. सो मैं क्या करता हूँ ना, हम यही सेम प्रॉपर्टी इसको भी अप्लाई करते हैं. सो क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट क्या होगा, यहाँ पर हमारा बॉक्स टू का भी साइज बढ़ जाएगा. ओके, सो नाउ बोथ द बॉक्स का साइज हो गया इक्वल. Okay, now we are coming out to the property known as box sizing border box. Okay, now मैं क्या करता हूँ, जो हमारा let's apply on the first box one as in box sizing border box. Okay, so I will saying for box sizing border box. ये प्रॉपर्टी से आप क्या होगा ना, जो उसका एक्चुअल लेंथ है, दिस इज विड एंड हाइट. ओके, जो इसका एक्चुअल लेंथ एंड हाइट है वो उतना के उतना ही रहेगा, भले ही आपने उसको कितना भी बॉर्डर दे दिया हो, पैडिंग दे दिया हो, उसका साइज उससे कभी इंक्रीज नहीं होगा. जैसा हमारा इसका साइज इंक्रीज हो गया है ना, वो उसका साइज 200 बाय 200 पिक्सल ही होगा. ओके, लेट्स सी इट नाउ. ओके, जो जैसा हमने देखा था, लेट्स गो एंड सी इट. देखो जो हमारा बॉक्स था नॉर्मली वो उतना का उतना ही साइज है, वो क्या कर रहा है, वो इंटरनली खुद को अप्लाई कर रहा है, वो इंटरनली अपने खुद को आपको एडजस्ट कर रहा है. ओके, सो हमारे पास ये कंडीशन कब आता है ना, व्हेन यू मेक कार्ड्स. ओके, एंड व्हेन यू वांट के जो इनर कंटेंट को हम कुछ भी पैडिंग दे रहे, और वी कैन गिव एनीथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, तो हमारा क्या होना चाहिए, जो इनर कंटेंट है वो बाहर नहीं जाना चाहिए आपके बॉक्स से. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी नोन एज बॉक्स साइजिंग. ओके, सो बॉक्स साइजिंग से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, बॉक्स साइजिंग से हमें क्या मिल रहा है, जो आपका एक्चुअल साइज और विड मतलब विड और हाइट दिया है ना अपने बॉक्स का, वो उतना के उतना ही देगा, भले ही आपने उसको कितना भी पैडिंग दे दिया हो, कितना भी उसको अंदर आपका बॉर्डर दे दिया हो, देन टू इट विल ऑलवेज व्हाट वी कैन से एडजस्ट इंटरनली वो अपने आपको एडजस्ट करता जाएगा. वेरेज ये बॉक्स का हमने क्या देखा, जब हम हमारे बॉक्स साइजिंग का प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लगा है, ड्यू टू विच वो क्या हो रहा है, वो और हमारा साइज बढ़ते जा रहे हैं. राइट. सो ड्यू टू विच हमारा क्या हो गया, अभी बॉक्स टू का साइज हैज बीन इंक्रीज बिकॉज यहाँ पर हमने अप्लाई नहीं किया है प्रॉपर्टी नोन एज बॉक्स साइजिंग. ओके, एंड बॉक्स साइजिंग का वो यूज आता है जब आपका जो आपका साइज दिया रहता है अपने अपने बॉक्स को और कार्ड्स को. राइट. ओके, वो कार्ड का साइज आपको उतना के उतना ही चाहिए, भले आप कितना भी आप उसको पैडिंग लगा दो, मार्जिन लगा दो, और कैन से नॉट इन मार्जिन, मार्जिन तो आउटसाइड होता है तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं होता है. ओके, जो आपका पैडिंग होता है और बॉर्डर होता है, राइट, वो दो इंपॉर्टेंट होता है जो आपका बॉक्स का साइज इंक्रीज करते हैं. ओके, सो वो हमें प्रॉब्लम आता है जब आप अपना बॉक्स के अंदर कंटेंट को ये करते हो. व्हाट वी डू, वी जस्ट गिव स्पेसिंग टू इट. राइट. जब आप इनर स्पेसिंग देते हो ड्यू टू विच आपका बॉक्स का साइज बढ़ता है, बट आपको क्या चाहिए, वो उतना के उतना ही चाहिए. ड्यूरिंग दैट टाइम कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी नोन एज बॉक्स साइजिंग. ओके, और उसका वैल्यू यू शुड गिव बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो हमेशा आपके बॉक्स के अंदर ही ऑक्यूपाई रहेगा. राइट. यस, हैव एवरीवन गॉट दिस एग्जांपल नाउ, व्हाई वी यूज दिस? यस, अच्छे से समझा अभी? यस. Okay, fine. Now what we'll be doing, we'll be creating one card. Okay, वो कार्ड को बनाने के बाद हम हमारा फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे. ओके, सो हम भी क्या सीखेंगे, हम कैसा कार्ड बनाएंगे. फाइन. ओके, सो अभी कार्ड बनाने के ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. ओके, डोंट वरी, विल बी लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग. फाइन. ओके, सो शुड वी मूव अहेड नाउ. हम अभी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हम हमारा कॉन्सेप्ट अभी हो गया क्लियर. यस, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन क्या होता है, देन बॉर्डर रेडियस क्या होता है, सबको समझा है अच्छे से? यस. नाउ विल बी लुकिंग आउट हाउ वी basically apply on our projects while making cards in our projects. Right. Okay, so हम हमारा cards बनाएंगे by using the property called as box model. Okay, so let's go ahead now. Yes. Okay, so let's move ahead now. Okay, so मैं क्या करूंगा ना, जो हमने
this we have, or else what we can do, I can just create one this new, that is card.html now, right? Or iske andar let's have this boilerplate and I can write this as card, right? Okay, and you can link this css file to this as well. Okay, or else we can make the new one. So what should we do now? We can make the new one as well, or we can create this one. So let's link the normal one as well. ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, कॉन्फ्लिक्ट नथिंग, प्रॉब्लम कब आएगी हमें? प्रॉब्लम जब आते हैं ना, जब आपका जो इसमें नाम दिया हुआ है हो, ओके मतलब जो इसमें आपका डॉक्यूमेंट में नाम दिया हो और इसमें नाम दिया हो सेम हो, तो वहां पर वो कौन सा भी एक प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है. फाइन, so ड्यूरिंग दैट टाइम वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट अभी हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, राइट? So we won't be getting that type of errors, or not an error, we can say not type of conflicts, right? Okay, so let's move ahead now. Okay, so let me close this tab now. Fine. और हम क्या करेंगे, लेट्स ब्रेक डाउन द स्टफ. तो हम एक पहला कार्ड बनाएंगे. ओके, सो कार्ड इज नथिंग बट आई विल मेक द डिवीजन आउट हियर, और उसको हम क्लास दे देंगे एज कार्ड. ओके, मैं इसको क्लास क्यों दे रहा हूँ आपको आगे समझेगा. व्हाई आई हैव गिव दिस डिवीजन एज कार्ड. ओके, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, चलो अभी पहले एक कार्ड बना रहे, राइट? ओके, जो आपका आउटर होता है, हम क्या करेंगे ना, अभी मैं आपको एक बार ब्रेक डाउन करके बताता हूँ. ओके, सो आपको उसको समझने में आसानी होगी. सो लेट्स क्लियर दिस आउट. ओके, अभी आप समझो. जब आपका सच में कार्ड बनता है ना, तो ऐसा बनता है. तो ये कार्ड बना, राइट? ओके, इसके अंदर आपको पहले इमेज प्लेस करना है. लेट अस इमेजिन कि आप अभी पहले इमेज बना रहे थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन सा वी हैव गॉट हियर समवेयर, राइट? हाँ, दिस वन देखो, ये वाला हम बनाते हैं ऐसा. ओके, लेट्स मेक दिस वन टाइप. ओके, सो हम क्या करेंगे ना, देखो आपका इमेज है, राइट? ओके, इमेज के बाद हमें कौन सा हेडिंग टैग यूज कर लेंगे ये साइज का, और उसके बाद व्हाट वी कैन यूज दिस कॉल्ड एज पैराग्राफ. फाइन. ओके, सो पहला क्या बना है, यहाँ पर एक कार्ड बना है. ओके, सो ऐसा हम हमारा कार्ड बना देंगे. ओके, सो हम क्या करेंगे, वी हैव गिव दिस डिवीजन एस. ओके, सो कार्ड का हमने कभी यूज नहीं किया, राइट? So I can say CARD card, right? Let me give the width of 300 pixel for now. Okay, और हाइट मत देना, बिकॉज रीजन बिहाइंड दिस इज, जब आप हाइट दे दोगे ना तो हमें वो प्रॉब्लम आता है नोन एज ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी, राइट? तो अब हमारा हाइट नहीं देगी, बिकॉज जितना हमें ये देना है वो उतना अपने आप से ऑक्यूपाई कर लेगा. ओके, उसके अंदर कंटेनर जितना रहेगा उतना. हम उसको बॉर्डर दे देते हैं ऑफ, लेट अस गिव 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक फॉर नाउ. ओके, फाइन. अभी इसके अंदर कुछ रहेगा नहीं, तो आई वोंट थिंक सो क्या वो विजुअल आउट होगा या, अरे सॉरी, हमारा कार डॉट एच टी एम एल है, राइट? सो लेट्स ओपन दिस. फाइन. और जो हमारा पुराना वाला था ये, लेट मी क्लियर इट आउट. देखो, तो हमारे एक नॉर्मल एक छोटा सा लाइन मिला, बिकॉज हमारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं हुआ है, राइट? अभी देखो, ये हमारा कार्ड हो गया, राइट? जिसका विड्थ कितना दिया हमने, ऑफ 300 पिक्सल, राइट? 300 पिक्सल हमने उसको बॉर्डर दे दिया. फाइन. नाउ हम क्या प्लेस करेंगे इमेज, बट यहाँ पर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो, आप अभी जब इमेज प्लेस करोगे ना, तो उसको आप किस में प्लेस करोगे, एक डिवीजन के अंदर. रीजन बिहाइंड मेकिंग इट इन डिवीजन इज दैट, जब आपका इमेज का साइज छोटा हो जाएगा ना, ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका कैसा हो जाएगा, कार्ड बड़ा हो जाएगा और इमेज छोटा हो जाएगा. तब हम क्या करते हैं, टू गेट आउट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी मेकिंग वन डिवीजन आउट हियर. ओके, वो डिवीजन के अंदर हम उसको प्लेस करेंगे हमारा इमेज को. ओके, इमेज को हम हमारा इससे कर लेंगे, known as हमारा this API https source dot unsplash.com, followed by आप अपना हिसाब से साइज लिख दो. फॉर एग्जाम्पल 400 by 400, एंड आई वांट ऑफ लेट्स से आई वांट ऑफ burger font. Okay, so https source.unsplash.com, right? This is one API which give us the images as per your choice. Okay, so this is the size of your image. 400 by 400 is nothing but width and height. Okay, and the second one is nothing but what type of image do you want. So I have said I want the image of the burger, right? Now हम इसको दोनों को class दे देते हैं. Okay, so I can say class equals to image of it's the parents of the image. Okay, parent is nothing but यहाँ पर हमने नाम दे दिया, so हमें समझेगा जो इसका ये डिवीजन है वो यहाँ का पेरेंट्स है, राइट? ओके, नाउ दिस क्लास वी कैन गिव इट एज it's an image, so I can say it's an image. Okay, or I can say b dash image as well, but it's our choice. I can say image as well, no worries. Okay, now look after it what I'm doing.
ओके सो मैं पहले इसको टैकल करूंगा, नोन एज इमेज पेरेंट्स को। ओके सो आई विल जस्ट पॉइंट आउट दिस नाउ। ये आपका क्या करता है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ ये डिवीजन क्यों बनाया ना, मैं वो आपको बता दूंगा। सो हियर इट इज राइट। हम क्या करें ना, ये हम बना रहे हैं इसका बॉक्स, जो आपका इमेज है ना, ये बॉक्स के अंदर आपका इमेज प्लेस होगा, राइट। तो ये आपका बॉक्स बना रहे हैं, तो ये बॉक्स जो साइज होगा ना वो हम डिसाइड करेंगे अंदर का, समझ रहे हो। तो ये बॉक्स हम बना रहे हैं ओवर हियर, दैट इज इमेज पेरेंट्स। ओके तो नाउ आई वांट द विड्थ ऑफ 300 पिक्सल और उसका हाइट मुझे कितना चाहिए, आई वांट द हाइट ऑफ ओनली 200 पिक्सल। ओके नाउ क्या होगा, सी इसके बाद देखो अभी आप आउटपुट पे देखोगे ना, सो कुछ फर्क नहीं होगा। देखो वो पूरा 400 बाय 400 पिक्सल का मैं इमेज आ गया, राइट। मेरे को क्या करना होगा, जो इसके अंदर ये क्लास है ना इमेज, उसको मेरे को उसको बताना होगा कि उसको आपके पेरेंट का 100% विड्थ और हाइट लेना है। ओके सो पेरेंट का हमने हाइट कितना दिया है, देखो हाइट और विड्थ कितना दिया है, हाइट इज 200 पिक्सल एंड विड्थ ऑफ 300 पिक्सल। सो हमें इसको टारगेट करना होगा, इमेज को। तो इमेज को हमने क्लास क्या दिया है, इमेज। okay so I will be targeting this sorry image, and I will be saying you will take the 100% of your parent on height of 100%, right? As soon as I do it, just look out to the effect. See हमारा अभी क्या हो गया है, 300 pixel is your width. See this is the 300 pixel, or else what I can do, I can increase that as well. So I can say 400 pixel. ओके हमारा, और इसका हमारा कार्ड का भी हम बढ़ा देते हैं टू द 400 पिक्सल, राइट। और हम हमारा कार्ड को थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। देखो हमारा ये जो आपका ये है ना, कॉल इट एज दिस, व्हाट वी कॉल दिस बॉर्डर, राइट। तो उसको हमारा स्पेसिंग दे देते हैं इंटरनली। तो कार्ड के बीच में हम बोलेंगे आई वांट द पैडिंग ऑफ, लेट्स गिव द 5 पिक्सल ऑन ईच साइड। सो आई कैन से आई वांट द पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल ऑन ईच साइड। सो देखो हमें यहाँ पर थोड़ा पैडिंग मिल गया, राइट। now let's go and do the other stuff. okay so image को अंदर now you can see हमें क्या मिला है, हमारा इमेज का साइज क्या मिला है, 400 by 200 पिक्सल, राइट। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टी, जब आपका जो आपका इमेज का अगर क्वालिटी आपको अच्छा करना होगा, राइट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और आपको इमेज पे अप्लाई होता है, अप्लाई करना होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट फिट, एंड यू विल ऑलवेज स्पेसिफाई इट टू कवर। ओके इसका मतलब इसी अभी आपका इमेज कैसा है, लेट्स बिफोर मेकिंग दिस चेंजेस लेट अस सी कि आपका इमेज कैसे, सी ये इमेज ऐसा है, लेट्स टेक आउट टू द अदर इमेज एज वेल। ओके लेट्स रिफ्रेश द पेज। देखो ये आपका इमेज ऐसे है, राइट, बट आई वांट टू इंप्रूव दिस क्वालिटी। आपको अगर और अच्छा आपका इमेज बनाना है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वो क्या करता है ना, आपके इमेज को थोड़ा जूम आउट कर देगा, सो ड्यू टू विच आपका ना इमेज थोड़ा और अच्छे से अट्रैक्टिव बना देता है, राइट। सो सीएसएस खुद से एडजस्ट करता है कि वो इमेज कौन से इससे अच्छा दिखेगा, कौन से व्हाट वी कैन से जूमिंग आउट और जूमिंग इन, राइट। सो आई कैन से ऑब्जेक्ट फिट कवर, कवर इज नथिंग बट सी एज सून एज आई अनकमेंट दिस, जब मैं ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा, जस्ट सी आउट टू द इमेज आउट हियर, सो सी इट्स बीन एडजस्टेड इन सच अ वे कि वो खुद से अच्छे से दिखे, राइट। लेट्स मूव अहेड नाउ। सी यहाँ पर इफ आई रिमूव दिस इट वुड बी, वो क्या करते हैं बेसिकली जूम आउट करके वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि वो इमेज को कितना अच्छे से दिखा सकते हैं। सी दिस वाज अ नॉर्मल इमेज जो हमेशा स्ट्रेच्ड आउट था, मतलब वो आपका जो आपका इमेज था उसका डायमेंशन खराब हो गया था। बट हम ऑब्जेक्ट फिट से वो करते हैं कि हमारा इमेज का डायमेंशन अच्छा हो जाए, ड्यू टू विच इमेज विल लुक मोर ब्यूटीफुल आउट है। तो हम हमारा प्रॉपर्टी लगाते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट फिट कवर, right, so due to which हम हमारा see now you can see the image has been looking more good, right। okay so have everyone got it, इधर तक सबको समझा है what we have done till now, yes, have everyone got till here, सबको समझा है इधर तक क्या किया है हमने, yes, डोंट वरी। देखो ये फर्स्ट टाइम है, इवन आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना थोड़ा आपको समझना थोड़ा मुश्किल होता रहेगा, बट रेगुलरली विल बी डूइंग दिस स्टफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, डोंट वरी। सो हर एक लेक्चर में हम हमेशा कार्ड बनाएंगे। ओके वो कार्ड को कैसा करेंगे तो आपको ना खुद से खुद आपको मेमोराइज हो जाएगा कि इसका कैसा आपका सिंटैक्स होता है, राइट। आपको डिवीजन बनाना होगा, डिवीजन कैसा कैसा अप्लाई होता है, ईच एंड एवरी स्टफ, फाइन। बट बेसिक आइडिया या तो वी कैन से 30 to 40% एटलीस्ट समझा है सबको क्या हमने किया है अभी, यस yes? जब आप कोड देखोगे ना ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल बी गेटिंग अंडरस्टैंडिंग कि हमने कैसा किया, जैसा मैंने यहाँ पर जब ड्रॉ करके आपको ब्रेक डाउन बताया था, राइट। सो वैसे हमने किया था। हैव एवरीवन गॉट टिल हियर, यस,
यस, यहाँ तक हमारा प्लीज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन इमेज पेरेंट एंड इमेज। ओके, इमेज पेरेंट इज नथिंग बट ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ना ये बाहर का, और इमेज इसके अंदर प्लेस किया हमने, और उसके अंदर हमने इमेज को क्या बोला, आप अपने पेरेंट्स का 100% विड एंड हाइट ले लो, राइट। तो वो उसके बाहर नहीं जाएगा, वो आपका पेरेंट्स है ना, दिस बॉक्स, उसका हमने नाम दे दिया इमेज पेरेंट्स। आप अपना भी नाम दे सकते हो, अभी मैं मेरा नाम दे देता हूँ, चलो मैंने इसका नाम दे दिया तो आपको विजुअलाइज करने इजीली होगा। इफ आई राइट सिद्धेश आउट हियर, तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इमेज पेरेंट। सो सिद्धेश क्या कर रहे हैं, ये वो ना एक अपना इमेज है, जो अंदर का इमेज है, उसको बोल रहे हैं कि मेरे से आप ज्यादा विड और हाइट नहीं लोगे। ओके, बट वो इमेज क्या कर रहा है, जब उसका नॉर्मल साइज है दैट इज 400 बाय 400, जब आप ये नहीं लगाओगे ना ये प्रॉपर्टी, सो नॉर्मल अपना साइज लेगा 400 बाय 400, बट आप क्या करोगे, वो इमेज को बोलोगे कि आप अपना 100% विड और हाइट लो, तो वो क्या करेगा, जो आप इसका पेरेंट्स था, हु इज द पेरेंट्स, सिद्धेश इज द पेरेंट्स आउट हियर, राइट। सो विल बी टेकिंग 100% विड, that is 400%, 400 पिक्सल सॉरी, एंड हाइट विल बी टेकिंग 200 पिक्सल, समझा। और वो हम ऑब्जेक्ट फिट कवर इसलिए यूज कर रहे हैं, जो आपका डायमेंशन खराब हो जाता है, राइट, बिकॉज वी अप्लाई इट ऑन आवर ओन, राइट। ओके, सो वो डायमेंशन, अभी देखो आपके रिजोल्यूशन का आपका इमेज तो नहीं है, राइट, दैट इज ऑफ 400 बाय 400, बट हम क्या चाह रहे हैं, हम इसके अपने रिजोल्यूशन का बनाए, दैट इज हमें जो हमारा डिवीजन जो आपका बॉक्स बना है उसके साइज का हमें उसको बनाना है, राइट। सो आपका डायमेंशन खराब हो जाएगा इमेज का, ऑब्वियसली जो क्लियरिटी होगी, जो उसका अच्छे तरीके से वो दिखता होगा, इट वोंट बी लुकिंग दैट वे, राइट। सो फॉर दैट रीजन वी हैव गॉट दिस प्रॉपर्टी नोन एज ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या करेगा, वो बेसिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ड्यू टू विच आपका इमेज विल बी लुकिंग मोर अट्रैक्टिव। तो एज सुन एज वी रिमूव दिस प्रॉपर्टी, ओके, यू कैन सी हमारा जो इमेज का ये रहेगा, इट वुड बी सी दिस इमेज वी हैव गॉट हियर, राइट। ओके, और एज वी कैन रिफ्रेश द इमेज एज वेल, नो वरी, सी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उसका पूरा डायमेंशन ये हो गया, राइट, बिकॉज उसका हाइट देखो, विड्थ तो बराबर है बट इसका हाइट क्या हो गया, इट्स बीन कंप्रेस्ड, राइट। 400 पिक्सल से मैंने उसको कर दिया 200 पिक्सल, तो क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, राइट। बट मेरे को क्या करना है, उसको नॉर्मल एटलीस्ट अच्छे तरीके से दिखे, राइट। फॉर दैट रीजन वी यूज दिस प्रॉपर्टी नोन एज ऑब्जेक्ट फिट कवर, राइट। सो ड्यू टू विच इट्स लुकिंग मोर गुड आउट नाउ, राइट। सो देखो ये रैंडम इमेज आ रहा है, फॉर दैट रीजन नॉट बीन लुकिंग दैट गुड एज वेल, बट आप अपने अकॉर्डिंगली इमेज लेके आ सकते हो, राइट। सो नाउ इट्स बीन लुकिंग गुड एज वेल, फाइन। सो इधर तक सबको समझा है, everyone got the difference between this now, have Pranati, do you got it? Yes, अभी समझा आपको what does this image parent and this image does? Yes, don't worry, आपको slowly and gradually समझेगा, fine, okay, समझा, fine. So let's move ahead now, okay, don't worry, we'll be looking out for it, fine. अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये इमेज है ना, इसको हम क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस, तो ड्यू टू विच हमें किधर किधर बॉर्डर रेडियस देना है। ओके, सो बिफोर दैट लेट मी जूम आउट द स्क्रीन टू 100% नॉर्मल वन। देखो टॉप में देना है बॉर्डर, टॉप लेफ्ट रेडियस, राइट में देना, और दोनों नीचे नहीं देना है, राइट। ओके, सो मैं टॉप में दे दूंगा, राइट में दे दूंगा, और दोनों नीचे नहीं दूंगा। ओके, सो आपको इमेज के अंदर जाना है। ओके, आई कैन से बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ओके, लेट्स गिव ऑफ 5 पिक्सल फॉर नाउ, और मुझे देना है ऑन दी top right radius, right. So now we will be getting the radius on the top left and top right. Okay, so it would be here, sorry, not here, it would be here, right. So now you can see it's of 5 pixel, guys, it won't be visible that much, so let's give off 20 pixel for now. Hope so it would be visible for now. Yes, we have got this visible, right. ये जो border दिया है ना, हम उसको कैसा ए करेंगे, ओके, विल बी सीइंग आउट दैट एज वेल, बट डू वी गॉट दिस टाइप ऑफ बॉर्डर नाउ, जो यहाँ पर इन्होंने दिया था, राइट। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नीचे ये है नोन एज द हेडिंग, और दिस पैराग्राफ विल बी राइटिंग दैट, राइट। सो लेट्स गो अहेड एंड राइट इट। तो इसके बाहर आपको लिखना है, बिकॉज ये वाला डिवीजन किसके लिए होता है, इमेज के लिए होता है। इसके बाद अभी आपको नॉर्मली लिखना है, डोंट वरी, यहाँ पर आपको डिवीजन ऐसा बनाने का नहीं। सो लेट्स मी राइट द H3 एंड आई कैन से क्लासिक, और वी कैन से चीजी आउट योर, राइट। और इसके बाद हमें उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और पैराग्राफ ऑफ लॉरेम ऑफ डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, ऑफ कुछ भी ऑफ 20 वर्ड्स, 20 words will be greater, let's take off 10 words itself. Okay, let's see it, how is it looking now. Okay, so it would be over here, right. So we have got this image, देखो, this is a this text, and this is a what we call it as description out here.
नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमें ना बाय डिफॉल्ट क्या मिला है, मार्जिन मिला है। जैसा मैंने आपको बताया था, हमें बाय डिफॉल्ट मार्जिन मिलता है, राइट? ओके, सो वो बिफोर डेट हम क्या करते हैं, फॉन्ट हमारा एक अच्छा वाला लेके आ जाते हैं फ्रॉम द गूगल। ओके, सो हमें अच्छा भी दिखेगा, तो आई कैन गो ऑन द fonts.google.com. I will select my best one and the most of the developer use it. Okay, that is the Popin out here, right? Because the Popin is considered as the official one that each and every website would have, right? So I always make sure कि मैं ये use करूँ, right? So I'll be using this regular one, okay, and this medium of 500. Okay, so everyone know it. How can we do it, right? Import पर जाना है आपको. Just copy this URL from here, right? And we'll be placing it at the top of our CSS file, which is over here. Right now, let me do it. Right now, I want to apply it. So applying it, where I want to apply it, जो भी हमारे कार्ड के अंदर टैक्स होगा, सी इसके अंदर जो भी हमारा टैक्स होगा, उसके अंदर मुझे अप्लाई करना है, right? So I can just copy this font family from here, right? And I will just apply it over here. So हमारा जो भी टैक्स अभी ये कार्ड के अंदर होगा, कार्ड इज नथिंग बट सी दिस वन, राइट? इसके अंदर हमारे जितने भी टैक्स हो गए इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, पी पैराग्राफ टैग पर भी अप्लाई हो जाएगा. So let's go and see हमारा अप्लाई हुआ है कि नहीं. सी इट्स बीन लुकिंग मोर गुड आउट फॉर नाउ. यस, ओके. अभी हमें क्या करना है, इधर तक सबको समझा है? इट्स नथिंग बट वी हैव डन नथिंग टिल नाउ. हमने एक हेडिंग दिया और एक पैराग्राफ लिख दिया है, डमी टेक्स्ट आउट हियर, राइट? इधर तक सबको समझा? यस, हैव एवरीवन गॉट टिल हियर? ओके, हम क्या करते हैं अभी, लेट्स मेक इट मोर ब्यूटीफुल आउट हियर. ओके, हम क्या करते हैं ना, अभी हम मैं आपको बताता हूँ, आपको समझेगा कैसा है ये जो डिफॉल्ट मार्जिन आया है. हाउ कैन वी नो क्या डिफॉल्ट, ये जो स्पेसिंग दिख रहा है ना, हमने कुछ उसको स्पेस तो दिया नहीं है, तो ये कैसा आया? रीजन बिहाइंड दिस इज आई हैव सेड क्या आपका जो ईच एंड एवरी एचटीएमएल टैग को एक बाय डिफॉल्ट हमें मार्जिन दिया जाता है. ओके, सो आपको देखना है वो कैसा है, तो जस्ट क्लिक ऑन योर दिस, राइट क्लिक ऑन योर दिस, inspect it. Go on this, I click on this icon. Okay, now just hover on this. See, देखो, this is a H3 tag, color is black. See, we have got this margin. देखो, fourth option है called as margin. Margin on the top and bottom is of 18.72 pixel and left and right of 0 pixel. दिखा सबको? Whereas जो ये देखो यहाँ पर भी हमें by default मिला है, तो हम क्या करते हैं ना, ये H3 और इसको पैराग्राफ को हम टारगेट करते हैं, राइट? बिकॉज हमें थोड़ा स्पेसिंग चाहिए, पर इतना भी स्पेसिंग नहीं चाहिए जो अच्छे से दिखे ना. समझा है कैसा आ रहा है? सभी अभी समझा? डू वी गिव एनी मार्जिन टू इट? बट नो, each and every HTML elements have or tags have the margin, default margin. Okay, समझा है कैसा देखना होता है? Yes, समझा? Yes guys, okay, have everyone got it? हम इसको अभी रेड्यूस करेंगे जिससे आपको आपका जो कार्ड है उसमें अच्छे से आपका अलाइनमेंट हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव हेड एंड सी इट. ओके, सो वापस देख लेते हैं. देखो यहाँ पर हमें मार्जिन मिला 18.72 पिक्सल ऑन टॉप एंड बॉटम में, और ये पैराग्राफ को हमें मार्जिन मिले 16 पिक्सल. सो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस मच आई विल बी गिविंग इट 10 पिक्सल. फाइन, ओके, सो लेट्स गिव दैट मच. सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हम आईडी दे देते हैं ऑफ H3, or we can say it's a title, right? So I can say title. Okay, and इसको हम दे देते हैं id equals to DESC, that stand for description, right? So I can say over here hashtag title, sorry, and I will be giving the margin which was of 18 pixel, by default I want just 10 pixel on top and bottom and left and right of 0 pixel, right? Similarly हमने जो description दिया है DSC, I will be saying the margin I want instead of 16 pixel था, तो will be saying I would just want of 8 pixel on top and bottom and right and left of 8 pixel. Okay, now you will be seeing हमारा जो कार्ड है, सी जस्ट स्क्रॉल ऑन इट. देखो हमें क्या मिला है, हमने अभी इसको चेंज कर दिया 8 पिक्सल जो हमारा पैराग्राफ था, और इसको कितना कर दिया 10 पिक्सल, राइट? नाउ लेट्स गो एंड सी. यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, इट्स बीन लुकिंग मोर गुड. ओके, अगर आपको इसमें भी थोड़ा और यहाँ पर जो स्पेसिंग है इसको हटाना है, सो क्या हुआ है, यहाँ पर नीचे 10 पिक्सल मिला और यहाँ से 8 पिक्सल, तो ड्यू टू विच यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट? सो आप उसको कम भी कर सकते हो. आप क्या करो ना, जो इसका टॉप ये क्या है, राइट, इसको हमें over here, let's go over here, because यहाँ से हमें 10 पिक्सल बॉटम में मिला, राइट? So I'll be saying bottom में instead of giving 10 pixel I just want 0 pixel,
एंड राइट में भी मुझे, लेफ्ट में भी मुझे चाहिए 0 पिक्सल। तो टॉप में मुझे सिर्फ 10, राइट में 0, बॉटम में 0 एंड लेफ्ट में हाउ मच, दिस नोन एज the 0 pixel on the left as well, right? So now you can see हमारा यहाँ से जो ये था मार्जिन हट गया, right? And if you want to इससे भी आपको थोड़ा और पास में करना है तो आप यहाँ से मार्जिन हटा सकते हो, that is from a paragraph tag, because see अगर आपको वापस इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक ऑन योर दिस, ओके, जस्ट गो ओवर हियर, इंस्पेक्ट करोगे तो आपका जो देखो ये है ना, यहाँ पर हमें मार्जिन नीचे नहीं है, देखो कुछ दिख रहा है, जो ये आपका क्रीमिश कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है, वी कॉल दैट एज मार्जिन। तो देखो मार्जिन 10 0 0, तो 0 0 नथिंग बट योर जो आपका लेफ्ट ओवर पार्ट है वहां पर 0 0, so यहाँ पर हमें कितना मिला, 8 पिक्सल का मार्जिन मिला। फाइन, तो यहाँ इससे आप अपना निकाल सकते हो मार्जिन। ओके, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेकिंग दिस बॉर्डर रेडियस सम टाइप ऑफ दिस मैंने जो रेडियस दिया वही करता है, उसको थोड़ा लाइट बनाते हैं। ओके, बट बिफोर दैट हमें इसको ना एक ऑर्डर बटन भी बना देते हैं, राइट? सो इस हियर आई विल बी राइटिंग button of class btn, right? So these are the shortcut, how can you make your button with a class name as btn instead of writing। देखो आपको कैसा, अगर आपको बटन बनाना होता रहेगा तो आप क्या करोगे, पहला बटन बनाओगे फिर उसके बाद क्लास लिखोगे btn, बट शॉर्टकट वेज पहले आपको टैग का नाम लिखना होता है, डेट इज जो भी आपको लगता है, आई वांट टू मेक बटन, फिर उसके बाद आपको अगर आईडी डालना है तो आप हैशटैग यूज करोगे, राइट? तो हैशटैग यूज करके आप उसका नाम दोगे तो आपका बाइडिंग ये बन जाएगा। इफ आई राइट हैशटैग बटन, बटन हैशटैग बटन BTN, that stand for button itself, so आपको क्या मिलेगा, एक बटन टैग मिलेगा with an ID BTN। Okay, so these are the shortcut we may basically make use of while coding, right? Okay, so I will just cut it off। okay, मुझे ये वाला चाहिए था, right? Okay, so now I will write order now, right? Now let's go and style this button, because अगर हमें बटन मिलेगा so it won't be looking that good, right? हमें क्या करना है, बटन अच्छे से अब उसको स्टाइल करना है। So let's go and style this, right? So I will be saying I will be targeting this button by using this class, perfect। So let's go and say it dot btn, that stand for button, okay। Now what we'll be doing, we will be saying you take the width of 100%, okay। So 100% अभी किसका लेगा, हमारे कार्ड का, okay। So just go over here, see हमारा ये कार्ड का 100% लिया, बिकॉज इसका ये क्या है, इसका जो व्हाट वी कॉल इट है, इसका पेरेंट कौन है, सी इसका पेरेंट जो इसका बटन किसके अंदर आ रहा है, हमारे div के अंदर, तो इसका वो जो भी पेरेंट होगा उसका 100% लेगा। Fine, now what I'll be doing, I will be giving some type of padding to it, okay। I'll be giving padding on top and bottom of, let's say of how many, 8 pixel, okay। And on the you can say left and right of 32 pixel, right? Whereas हम इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं of, let's give of black, okay। और उसके अंदर का जो हमारा टेक्स्ट होगा, let's give as white, right? So हमें उसका टेक्स्ट विजिबल होगा, okay। क्या वी हैव गॉट दिस बटन, हम इसका ऑर्डर का जो आपका ये है टेक्स्ट, उसको हम बड़ा कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट, आई कैन से फॉन्ट साइज, हाउ मेनी पिक्सल यू वांट, नाउ लेट्स से ऑफ 15 पिक्सल आई वांट, राइट? ओके, सो लेट्स सी हमारा फॉन्ट साइज ऑफ 15 पिक्सल, कैन यूज इट। सी हमारा भी जो ये बॉय आया नोन एज द बटन, राइट? सो इसका बॉर्डर देखो, इट्स लुकिंग एजी एंड इट्स लुकिंग, मतलब हमें आईज को बोथ we can say इफेक्ट आ रहा है, राइट? सो आई डोंट वांट दैट, शुड बी स्मूदी इनफ, राइट? सो फॉर दैट रीजन आप क्या करोगे ना, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो हमेशा अप्लाई हो एटलीस्ट ऑन दी बटन। आई कैन से बॉर्डर रेडियस ऑफ, लेट्स से ऑफ 8 पिक्सल फॉर नाउ, ओके। एंड हमारा हमारा और एक प्रॉपर्टी होता है कर्सर, राइट? सो बिफोर गोइंग अहेड, यहाँ पर अभी कर्सर कैसा है, सॉरी, यहाँ पर कर्सर हमारा नॉर्मल है, बट ऐसा हमें एक कुछ पॉइंटर जैसा हमें कर्सर मिलना चाहिए, सो हमें समझेगा ये ऑर्डर नाउ का एक बटन जैसा है, राइट? सो हमें देखो अभी यहाँ पर क्या मिला है, हमने अप्लाई कर दिया है दिस बॉर्डर रेडियस, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो एंड give the cursor out here to our button, so I can say cursor to be pointer, right? So now you can see हमें एक पॉइंटर जैसा ये मिलेगा, so now it's like clickable, right? ओके, हमें इधर बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर मिल रहा है, ओके। अगर आपको देखना है बॉर्डर तो क्या करो ना, just comment down this, okay, and just give which color you can give black color to your this color, font color, okay। so आपको एक बाय डिफॉल्ट ये मिल रहा है नोन एज बॉर्डर, बट मुझे वो बॉर्डर नहीं चाहिए, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका अगर नहीं चाहिए रहेगा तो आप क्या करोगे, लेट्स मी, ओके फाइन।
सो आप क्या करोगे, यू विल राइट आई डोंट वांट अ बॉर्डर, आई कैन से बॉर्डर शुड बी नन। सो यहाँ से अभी आपको बॉर्डर निकल जाएगा, राइट। सो आपको बॉर्डर निकल गया, इट्स बीन लुकिंग गुड फॉर नाउ, राइट। सो नाउ हमें क्या करना है, इफ यू वांट यू कैन गिव मोर स्पेसिंग एज वेल ऑन दिस, आई कैन से इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से 10 पिक्सल फॉर नाउ, हमारा बटन बढ़ गया, राइट। नाउ व्हाट आई वांट, सी आई वाज वी वर मेकिंग दिस वे बट वी हैव थोड़ा हमने अलग कर दिया है। ओके नाउ व्हाट आई वांट, जो ये बॉर्डर है ना वो दिख रहा है ना हमें, सो आई डोंट वांट टू, जो आपका कार्ड का बॉर्डर है वो हमें दिख रहा है ना, सो लेट्स मेक इट इन सच अ वे क्या वो आपको दिखेगा भी नहीं, एंड इट विल गिव वन सॉर्ट ऑफ दिस स्मूथनिंग इफेक्ट हुआ कार्ड। ओके सो आई कैन से ग्रे, यानी ग्रे में आप ना पूरा लाइट वाला ए सिलेक्ट कर लेना, सी दिस वन। ओके वेयर एज इसके बाद आप अपना बॉर्डर रेडियस भी दिए जाओ ऑफ, जो आपने इसको दिया है राइट, आपके वी कैन से इमेज को दिया था, इट वाज हाउ मच, इमेज कहाँ पर है, दिस इज इमेज राइट, हाँ बॉर्डर ऑफ 20 पिक्सल, जस्ट मेक्स 20 पिक्सल फॉर, सो वो क्या होता है बेसिकली आपका दिखने में अच्छा होगा। सो सी वी हैव गॉट बॉर्डर आउट हियर, राइट, बट इट्स नॉट बीन विजिबल दैट मच, यस। ओके अगर आपको इधर नीचे भी देना है ना ये आपको इमेज को, तो आप वो भी दे सकते हो, राइट। लेट रिफ्रेश द पेज एंड गेट द न्यू इमेज आउट हियर, सो सी वी हैव गॉट दिस इमेज आउट हियर, right? Okay, so can we able to create this type of boxes now? Yes, yes, सबको समझा, हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, हम वी हैव जस्ट यूज अ प्रॉपर्टी बॉक्स मॉडल के अंदर जो टाइप होते हैं, पैडिंग, मार्जिन, एंड विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज, वी हैव जस्ट यूज बॉर्डर। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सा भी हमने यूज किया है, कुछ भी यूज किया, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी यूज किया है फॉर डेवलपिंग दिस कार्ड कर्सर, अरे फाइन, दैट्स द स्मॉल स्टफ, वो सब का गिनती नहीं होता, राइट। बट जो मेनली यूज किया हमने ये सभी यूज किया, पैडिंग है, मार्जिन भी हमने नहीं यूज किया अब तक, मार्जिन हम कब यूज करेंगे जब हमारा फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे तब, राइट। बट उसके अलावा हमने क्या यूज किया है, पैडिंग एंड बॉटम। ओके फॉर नाउ अगर आपको ना ये जो आपका इमेज है उसको आपको सेंटर में लाना होगा, तो आपके पास मार्जिन का शॉर्टकट होता है, आपको क्या लिखना होगा, मार्जिन, और टॉप से आपको कितना देना, लेट्स से आई वांट द 50 पिक्सल, एंड आई इफ आई राइट ऑटो ऑन दी बोथ द साइड, अभी आपका ना जो इमेज होगा इट विल बी प्लेस इन द सेंटर। ऑटो का मतलब क्या होता है ना, वो लेफ्ट एंड राइट से देखेगा कितना स्पेस उसके पास अवेलेबल है, और उसके बाद वो खुद से अप्लाई कर देगा, अभी समझो 1000 पिक्सल का स्पेस अवेलेबल है तो 500 लेफ्ट 500 राइट, ओके, और वो अप्लाई करके आपका जो भी ये है ना इमेज उसको सेंटर में कर देगा, समझा। सॉर्टर से वो काम हो रहा, 50 पिक्सल इज बीन अप्लाइड ऑन द टॉप एंड बॉटम, फाइन। ओके सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कार्ड को थोड़ा हम डार्क बना सकते हैं, राइट। सो जो हमारा बॉर्डर होगा थोड़ा दिखेगा, यस, फाइन। और चाहिए तो आप थोड़ा मार्जिन भी और सॉरी पैडिंग दे सकते हो यहाँ पर। ओके सो इंस्टेड ऑफ 5 पिक्सल यू कैन गिव 8 पिक्सल, एंड लेट्स सी इज इट लुकिंग गुड, या इट्स लुकिंग मोर गुड फॉर नाउ, यस, अभी अच्छे से दिख रहा है, यस इट्स बीन लुकिंग मोर गुड नाउ, सॉरी। कैन यू एबल टू डिजाइन दिस टाइप ऑफ कार्ड्स नाउ, ये तीनों कार्ड्स नहीं, अभी आप ऐसा कार्ड्स तो एटलीस्ट एक बना सकते हो, यस, कैन यू एबल टू मेक इट, या। सो जस्ट वन स्मॉल होमवर्क फॉर यू गाइस, हम फ्लेक्स बॉक्स आज सीखेंगे नहीं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहले से टाइम आउट भी हो गया, राइट, 8:30 ऑलरेडी, फाइन। सो आज हम बॉक्स मॉडल लेकर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिए, नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करने देखेंगे, और वेर एज हम पोजिशन क्या होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम हमारा मेन स्टफ है दैट इज हाउ कैन वी what we can say render this we can say the position यूज करके आप ना अपना जो भी इमेज होता है, फॉर एग्जांपल नाउ अगर आपको इमेज के ऊपर टेक्स्ट लाना है, हाउ कैन यू डू दैट बाय यूजिंग द पोजीशन। सो यहाँ पर व्हाट दे हैव डन, इमेज के बाद ऊपर उन्होंने ये टेक्स्ट डिस्प्ले किया है, ओके। सो ये आपको नेक्स्ट होमवर्क होगा, बट मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, कैसा करके दिखाऊंगा, आई विल बी मेकिंग इट in our next lecture, okay, I'll be showing it to your next lecture, whereas ये सब boxes को एक लाइन में कैसा अलाइनमेंट भी करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, it just applying one property known as flex box। so flex box का uses कैसा करेंगे we'll be seeing it in our next lecture, fine। whereas we'll be also seeing how हमारा जो है that is position, we'll be seeing it in our next lecture as well, fine। So before that, okay, before this I just want you guys to practice this box model properly, right?
ओके एंड जो हम मैंने एक स्मॉल असाइनमेंट दिया है फॉर यू गाइस टू मेक सच टाइप ऑफ बॉक्स ओके नॉट एन बॉक्स आई कैन से कार्ड्स okay just do make this type of cards right and just you can place the screenshot of it and send it on our this discussion group so just I can get कि हाँ बच्चे लोग practice कर रहे that I have taught in my earlier classes yes will you be doing it yes guys करोगे आप लोग yes amazing okay fine यहाँ से आपको कुछ अगर डाउट भी आएगा so it will be good for you as well as for me to make you all understand कैसा क्या होता है overall working fine so just I want कि आप जो भी आज we have seen just practice it right so let me stop with the recording now